Hello students, let us start new concept, that is water potential. Water potential is the energy required per quantity of water to transport an infinitesimal quantity of water from sample to a reference pools of pure free water. वाटर पोटेंशियल वो एनर्जी है जो पानी को एक सबसे कम क्वांटिटी ऑफ पानी को एक सैंपल से रेफरेंस पूल की तरफ मूव करने में लगती है. इज द एनर्जी रिक्वायर्ड पर क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ट्रांसपोर्ट एन infinitesimal quantity, that is very small quantity of water from one sample to reference pool. Main components that determine the water potential, and water potential is indicated by a Greek letter, that is psi, and there are two important components that determine the water potential, that is solute potential and pressure potential. Solute potential, also known as osmotic potential, it is always negative in plant cell and zero in distilled water. solute potential जो है इसको osmotic potential भी कहते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होती है, और पानी डिस्टिल्ड वाटर की solute potential हमेशा ज़ीरो होती है. Because of the difference in water potential, water will move from soil into plant's root cell. जब आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सिमिलरली वाटर भी जो है मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. यहाँ पर अगर सॉइल में वाटर ज़्यादा है और रूट में कम है तो वाटर विल मूव फ्रॉम soil towards the root, and reverse is the case in case of osmosis. Pressure potential is based on mechanical pressure. It is based on mechanical pressure and is important component of total water potential. Pressure potential is always positive and it increases as water enters a cell. जैसे ही सेल में वाटर एंटर करता है तो ये प्रेशर पोटेंशियल बढ़ते जाता है. इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल इन विच देयर इज लॉस ऑफ फ्लूइड, द प्रेशर पोटेंशियल इज ऑलवेज ज़ीरो. नाउ टोटल वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोटेंशियल? Water potential is affected by pressure, gravity and metric potential. The dissolution of solute in water decreases its water potential. अगर हम किसी सॉल्यूशन में वाटर में अगर हम सॉल्यूट डालते हैं तो इसकी वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होती है. इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है इससे ज़्यादा अप्लाई किया जाए प्योर वाटर को तो उस वक्त वाटर की पोटेंशियल इंक्रीज करती है. नाउ लेट अस डिस्कस न्यू कंसेप्ट, दैट इज ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन. Transpiration and guttation are two important processes of removal of excess of water from the plant. Both the processes are responsible for the removal of excess of water from the plant, but have some differences. Now, what is transpiration and what is guttation? We will try to discuss. First of all, you should understand that both these processes are the removal of excess of water from the plant body. First point of difference is that transportation always occurs through stomata and lenticels.
stomata, the small pores which are especially under the leaf, under the lower side of the leaf, but they are also present on the upper side. Whereas guttation takes place through hydatodes. This is very important line. हाइडेथोस, ये जो गटेशन है ये हाइडेथोड्स के थ्रू होता है, जबकि ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। जब आप मेरी वीडियो वॉच करेंगे तो यही आपको होमवर्क रहेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। In case of transpiration, the loss of water is in the form of vapors, water vapors. But in case of guttation, the loss of water is in the form of liquid. Transpiration mostly occurs during the day and at very high temperature. Transpiration दिन में होता है और बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है, लेकिन गटेशन अर्ली मॉर्निंग में होता है या रात में होता है जब टेम्परेचर लो होता है। ड्राई कंडीशंस में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है और इट इज़ रेजिस्टेड बाय ड्राई कंडीशंस। तो गटेशन जो है ये ड्राई कंडीशन से रुक जाता है। विल्टिंग क्या होता है कि जब किसी पौधे को अगर आप दिन में देखेंगे तो उसके पत्ते जो थोड़े से टिल्ट करके नीचे की तरफ हो जाते हैं, हम ऐसे सिकुड़ जैसे जाते हैं, तो उसको टिल्टिंग कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं। ट्रांसपायरेशन होने के बाद पत्तों में टिल्टिंग हो जाती है, लेकिन गटेशन होने से लीव्स में की कोई विल्टिंग नहीं होती है। मीन्स अगर किसी लीफ में ट्रांसपायरेशन होती है तो उसमें विल्टिंग हो जाती है, लेकिन अगर गटेशन होती है तो उसमें कोई विल्टिंग नहीं होती। वाटर लॉस जो है वो सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होता है ट्रांसपायरेशन में, लेकिन गटेशन में डिफ्यूज़न से वाटर लॉस नहीं होता है। प्योर वाटर जो है ट्रांसपायरेशन से प्योर वाटर एलिमिनेट होता है, जबकि गटेशन से शुगर, सॉल्ट्स और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एलिमिनेट होते हैं। जितने भी खुश्की में पाए जाने वाले पौधे हैं या लैंड पर पाए जाने हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनको कहते हैं, और हर्बेशियस प्लांट जिनमें वुड नहीं होती है, उनमें ट्रांसपायरेशन होता है। गटेशन जो है सिर्फ हर्बेशियस प्लांट्स में ही होता है। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर कंसेप्ट, दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ रूट प्रेशर इन वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स। पानी जब प्लांट्स में मूव करता है तो उसमें रूट प्रेशर का क्या रोल है। रूट प्रेशर इज़ द पॉजिटिव प्रेशर दैट डेवलप्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाय द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब रूट्स करती हैं और सॉइल से वाटर एंड डिज़ोल्व्ड सॉल्वेंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं तो रूट प्रेशर बढ़ जाता है। When the nutrients are actually absorbed by root hairs, water with minerals increases the pressure in the xylem. जैसे ही सॉइल से वाटर और डिज़ोल्व्ड मिनरल जो हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स में, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये जाइलम का प्रेशर बढ़ा देते हैं। ये प्रेशर क्या करता है कि वाटर को और थोड़ी हाइट पर पुशअप करता है। It can be observed by cutting the stem of a well-watered plant on a humid day. When the stem is cut, the solution oozes from the cut end. इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि एक अच्छी तरह से वाटर्ड पॉटेड प्लांट अगर लेंगे, उसकी स्टेम को कट करेंगे, तो कट करने के बाद जैसे ही आप उस स्टेम को इस तरह से रखेंगे तो यहाँ से वाटर जो है वो नीचे को गिरना शुरू हो जाएगा
ऊज आउट करेगा। It also helps in re-establishing the continuous chain of water molecules in the xylem. रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर का कनेक्शन है राइट फ्रॉम सॉइल रूट हेयर्स टू ईच सेल ऑफ, ये कंटिन्यूटी होती है, ये बीच में कट नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूसली जो है ये जैसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं सब के सब, वाटर जो है वो उसकी स्ट्रीम सी बनती है। तो ये कनेक्टिविटी को रूट प्रेशर ही मेंटेन करता है। अगर रूट प्रेशर डाउन हो जाएगा तो कनेक्टिविटी जो है वो वाटर की कनेक्टिविटी कम हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रोल ऑफ रूट pressure in water movements in plant, difference between transpiration and guttation, and water potential. Thank you very much.